پادری پیٹرس مرے صاحب کے لیے، کلیمہ اقصیٰ کے لیے، تمام چرچ کے لیے جنہوں نے موقع فراہم کیا اس پلپٹ پر بہت ٹائم کے بعد آج خدا نے مجھے موقع دیا ہے، اور میں نہایت شکرگزار ہوں۔ یہاں پر ہمارے بزرگ پاپا جی صادق مسیح صاحب یہاں پر اس پلپٹ پر خدمت کرتے ہیں، اور آج میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ ان کے ہاتھ یہاں بچے خدا نے آج فضل دیا کہ کلیسیا کے اندر خدا کے کلام کی بات کی جائے، اور میں جس دن مجھے فاضل صاحب نے کال کی اور کہا کہ آپ نے منادی کرنا ہے، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ میں اس سے پہلے بھی دعا کر رہا تھا اور اس کے بعد کنٹینیو میں اس بات کے لیے خدا کی حضوری میں جھکا رہا، دعا کرتا رہا کہ یہاں پر ایک ایسے خادم کی کلیسیا میں جا کر خدا کے کلام کی بات کرنا۔ فاضل صاحب تو بہت بڑی بینی کے ساتھ لفظ کا بھی بڑا خیال رکھ کر وہ خدمت کرتے ہیں، تو میں اس بات کے لیے بھی خداوند کی شکرگزاری کرتا ہوں۔ 96 میں یہاں پر میری ٹین ایج کا ٹائم جو ہے وہ بہت اچھا گزرا، اور میں نے یہاں پر وہ چیزیں سیکھی جو اب تک میرے لیے مشر راہ ہیں۔ یہاں کی کلیسیا نے، یہاں کے خدام نے، اور اسپیشل مجھے جب والد صادق صاحب علیل تھے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے مجھے بڑا فخر فیل ہوتا ہے۔ آپ بھی جب کو بھی ذکر کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے۔ اگر الیشا ایلیا کے ہاتھوں پر صرف پانی ڈالتا ہے، صرف یہ ذکر ہے کہ وہ خدمت کیا کرتا تھا، شاگرد کیا تھا، تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب الیشا اور ایلیا کا ذکر آتا ہے تو الیشا کے بارے میں لکھا کہ صرف وہ ایلیا کے ہاتھوں پر صرف پانی ڈالتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں خدا کے خادم کے ساتھ رہنا، وقت گزارنا، وہ ہماری بڑی برکت کا باعث رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی برکت ہے جو اب تک ہماری لائف میں چل رہی ہے، اور اسی سبب سے خدا کے خادم ہے۔ اور میں خداوند کی ساری باتوں کے لیے شکرگزاری کرتا ہوں۔ نیو یروشلم چرچ جو ہے وہ ملتان میں اس کی 3 برانچز ہیں، سیلسفورڈ کلیسیا ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت ہی خدا کے کام کو جاری کیے ہوئے ہے۔ جمیل آباد میں اس کی ایک برانچ ہے، سید کالونی پرانی شان والی فروخپورہ میں اس کی برانچ ہے، اس کے ساتھ ہی 4 ڈورے والا گلشن شباز کون ہے وہاں پر اس کی برانچ ہے، اور خداوند کی شکرگزاری ہے یہ تینوں جگہ جو ہیں یہ کلیسیا کی ڈونیشن کے سبب سے ہے۔ خدا نے جو خدمت دی اس کے سبب سے خدا نے پھر بڑھایا، اور کلیسیا نہیں یہ چرچز جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے چھوٹا کام شروع کیا ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے ابراہام ٹی وی کے نام سے، ہم اس پر بھی اپنے میسیجز ڈالتے رہتے ہیں جو بہت سے لوگوں کی برکت کا وسیلہ ہے۔ سارا جلال، ساری عزت خداوند یسوع مسیح کو ملے۔ خداوند روح القدس کے لیے یہ زوردار تعریف بچائے گا۔ آئیے مقدس کلام میں سے اپنی برکت کے لیے غلطیوں کے نام خط ہے، اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے یوں فرمایا گیا ہے، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہماری زندگی کے اندر ہمارے جو الفاظ ہیں وہ ایک بیج کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہماری زندگی ایک کھیت کی مانند ہے، اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں، جب ہم بات چیت کرتے ہیں، جب ہم الفاظ بولتے ہیں، تو یہ ہماری زندگی کے اندر بیج
کے طور پر ہم اسے بو دیتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سلیمان جو حکمت کا بادشاہ ہے، اس کی مثال اس کے 18ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو زندگی اور موت ہے وہ زبان کے قابو میں ہے۔ ہم کیسے الفاظ بولتے ہیں، جیسے اگر دیکھیں تو ہر قسم کے بیج موجود ہیں۔ گندم کا بیج ہے اور اس کا الگ سے استعمال ہے، مکئی کا بیج ہے، چنا ہے اس کا الگ بیج ہے، دال کا، چاول کا۔ اسی طرح سے گوشت کی بھی قسمیں ہیں، مچھلی کا گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، چوپائے کا گوشت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، سوچیں، دیکھیں کہ میری جو خوشحالی ہے، میری جو ترقی ہے، یا میری جو شفا ہے، یا میری جسمانی یا روحانی جو کامیابی ہے، فتح مندی ہے، یا مالی برکات میرے پاس ہے، اور خدا کا جو بند دروازہ میرے کھلا ہے، تو اس کے پیچھے میرے وہ بیج ہیں، الفاظ ہیں جو میں بولتا ہوں۔ جب آپ یعقوب کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش کے ساتھ دعا کی اور آسمان بند ہو گیا۔ یہ الفاظ ہیں، اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے جس کے ذریعہ سے آسمان جو ہے وہ بند ہو گیا۔ لیکن پھر لکھا ہے پھر 3.5 برس تک میں نہیں برسا، پھر اس نے بڑے جوش کے ساتھ دعا کی تو بند آسمان جو وہ کھل گیا اور آسمان سے بارش ہوئی۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر جب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بیج کے طور پر ہے، تو اسی کے ذریعہ سے ہماری زندگی کے اندر کامیابی، فتح مندی، شفا، نجات، مالی برکات آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کا درست استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم کبھی کسی کی تسلی کا باعث نہیں بن سکتے۔ اگر ہم کسی کی تیمارداری کے لیے چاہتے ہیں، اگر ہم درست استعمال نہ کریں اپنے الفاظ کا، تو ہم اس کے لیے شفا کا وسیلہ نہیں بنتے۔ تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے ہمیں تمام حالتوں میں اپنے الفاظ کا صحیح استعمال کرنا ہے کہ میں بولتا کیا ہوں۔ خدا نے جتنے بھی جاندار بنائے ہیں، پرند بنائے ہیں، چرند بنائے ہیں اور چوپائے بنائے ہیں، لیکن خدا نے جب انسان کو بنایا اسے اشرف المخلوقات بنایا، اسے بولنے کی بھی طاقت دی کہ وہ بولے۔ جب آپ پیدائش کی کتاب کے 2 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ آدم نے تمام چوپایوں کے نام رکھے۔ وہ بولتا ہے، وہ چناؤ کرتا ہے الفاظ کا۔ ہماری زندگی کے اندر دراصل جو زبان ہے اور جو اس کے الفاظ ہیں، یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم کیسا بیج بوتے ہیں۔ یہاں پر غلطیوں کے خاتمے لکھا ہے، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بولتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، جو روح کے لیے بولتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ یعنی جو بیج ہم بوتے ہیں، ہرگز اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے گندم کا بیج بویا ہے تو گندم کی فصل ہی ہم نے کاٹنی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم گندم کا بیج بو کر مکئی کی فصل کاٹنے کی تیاری کر رہے ہوں۔ جو الفاظ ہم نے بوئے ہیں، جو بیج ہم نے زمین میں بکھیرا ہے، اسی کو کاٹنے کی ہم تیاری کریں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر مناسب الفاظ کا استعمال کریں۔ اگر غلط الفاظ کا استعمال کریں گے ہم ناکام ہو جائیں گے، اور ہماری ناکامی، ہماری بدحالی کا سبب جو ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں، جس کے سبب سے ہم اپنی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کو حاصل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ 1-2 حوالے دیکھیے گا جس میں ہم مدد لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے
कामयाबी और बरकत और खुशहाली और फतहमंदी अल्फाज के बीच के सबब से हुई। गिनती की किताब में देखिएगा उसके 13वें बाब में और उसकी 31 से लेकर 33 आयत तक यहां पर मूसा ने मुल्क कनान की जासूसी के लिए 12 लोग चुनकर भेजे हैं। क्या हुआ है जी? लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे, हाँ जी, और कहने लगे हम इस लायक नहीं हैं, वो कहने लगे हम इस लायक हैं कि उन लोगों पर हमला करें, हम इस लायक नहीं है कि उन लोगों पर क्या कर ले, हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर है। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की हाँ जी, जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे हैं एक ऐसा मुल्क है, हाँ जी, जो अपने बशिंदों को खा जाता है जी। और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं और हमने वहाँ बनी ईमान को भी देखा। बहुत शुक्रिया जी। और हम उनकी नजर में ऐसे हैं जैसे टिड्डे ये बोल रहे हैं। ये अल्फाज हैं। अल्फाज क्या है? करने जासूसी के हैं और वहां पर मुल्क का हाथ ड्राफ्ट करने के हैं, लेकिन जब वापस आए हैं इनके अंदर कमजोर ईमान मौजूद है। ये पूरी कौम बनी इसराइल के हौसले को तोड़ रहे हैं, हौसला शिकनी कर रहे हैं और साथ साथ इनके अल्फाज जो है वो कड़वाहट का बायस भी है। इसमें शिकवे और शिकायत भी मौजूद है और ये इसके अंदर बुड़बुड़ाहट भी मौजूद है, इसके अंदर बगावत भी मौजूद है और वो माजी के हालात को सोच रहे थे कि ये बेहतर थे। वो माजी के बारे में बात कर रहे थे कि हमारा माजी बेहतर था, जहां पर ईंटें बनाते थे, जहां पर गुलामी के अंदर मौजूद थे। लेकिन इस बात के वो सोच नहीं रहे हमारा जो मुस्तकिबिल है वो खुदावन हमारे खुदा के हाथ में है, जिस खुदा ने उनकी आंखों के सामने पहले कुज़म को 2 हिस्से कर दिया और वो उसमें से चलकर पार हो गए। मेरे अजीज बहन भाइयों, बहुत दफा हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी बरकत को रोकता है, जो हमारी कामयाबी को रोकता है, और फिर साथ ही इसके 14वें बाब की पहली आयत को पढ़े तो और वाज़ेह है। वो क्या कह रहे? तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे, सोए नहीं है। इस कदर वो रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं? और कुल बनी इसराइल और मूसा हारून की शिकायत करने लगे जी। और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाँ जी, काश कि हम मिस्र में ही मर जाते, या काश हम इस बियाबान में मर जाते। ये अल्फाज हैं, अपने लिए मौत मांग रहे हैं और ऐसा ही हुआ। खुदा ने कहा कि ये सब के सब बियाबान में ही मरेंगे, सब के सब बियाबान में ढेर होंगे। ये बीज पहले से बो रहे हैं, काश हम बियाबान में ढेर हो जाएं, काश बियाबान में मर जाएं। खुदा के बंदा मूसा और हारून की भी शिकायत कर रहे हैं, तू हमें यहां मरने के लिए ले आया है, क्या वहां मिस्र में कब्रें नहीं थी? लेकिन हम यहां पर हमारे बाल बच्चे कहते हैं कि ये तो लूट का माल हो जाएंगे। खुदा ने कहा कि इन्होंने जो इस तरह से शिकायत की है, इस तरह से बुड़बुड़ाए हैं, इस तरह से बेईमानी दिखाई है, इस तरह से अपने अल्फाज का गलत चुनाव किया है, इस्तेमाल किया है खुदा के खिलाफ भी, खुदा के खादमों के खिलाफ भी, इसलिए खुदा ने कहा कि ये उस मुल्क को देखने भी नहीं पाएंगे। इन्होंने एक ऐसा गलत रवैया दिखाया है कि हम मिस्र में मर जाते, बियाबान में मर जाते। खुदा का मंसूबा क्या था? जब हम खुदकुशी किताब उसके 30 बाब की 7 आयत पढ़ते तो खुदा ने कहा कि मैं उतरा हूं, मैंने इनकी हालत को भी देखा है, मैं चाहता हूं कि इनको मुल्क मिस्र से जो गुलामी का घर है यहां से निकाल कर मैं उनको उस मुल्क में ले जाऊं जहां दूध और शहद बहता है। खुदा का मंसूबा ये है, लेकिन ये अपने अल्फाज का गलत चुनाव कर रहे हैं।
یہ اپنے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو آگے چل کر ان کے لیے ہلاکت کا، موت کا باعث بن گئی۔ آج میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم بعض دفعہ اپنی مالی مشکلات کے وقت، خاندانی مشکلات کے وقت کچھ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو بعد میں جس کی فصل ہمیں کاٹنی پڑتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ حالات میرے کیسے ہو گئے ہیں۔ آج جو میرے حالات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ماضی میں کچھ ایسے الفاظ بولے ہوئے ہیں، کچھ ایسی فصل، کچھ ایسے بیج بولے ہوئے ہیں جس کی فصل آج کاٹ رہے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کل کو اس کا خمیازہ بھی بھگتیں گے۔ جو بیج وہ بو رہے ہیں کل اس فصل کو وہ کاٹیں گے بھی۔ افسوس جب ہم پریشان ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے فرعون کو اس کے رتوں سمیت بحر قزم کے اندر غرق کیا اور ان کی آنکھوں نے دیکھا بھی۔ کاش یہ خدا کے اس بڑے کام کا، بڑے عجائب کا یہ چرچا کرتے، ذکر کرتے کہ میرا خدا جنگ میں زوراور ہے، میرا خدا قوت والا ہے، قدرت والا ہے، عجائب دکھاتا ہے، صاحب جنگ ہے، صاحب کرامات ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ اس کے بڑے بڑے کاموں کو بھول گئے اور انہوں نے صرف کھانے پینے کی طرف دھیان دیا، انہوں نے صرف مادی چیزوں کی فکر کی۔ میرا مسیحا کہتا ہے اس بات کی فکر نہ کرو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے۔ ان چیزوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تم پہلے میری بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی، تمہیں کبھی محتاجی نہیں ہوگی۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو جو نہ بوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ کھتوں میں جمع کرتے ہیں، تمہارا آسمانی باپ ان کو دیتا ہے، اے نادان تجھے کیوں نہ دے گا۔ افسوس کہ ہم بہت دفعہ خدا کے پاس اس لیے بھی آنے میں کتراتے ہیں کیونکہ ہم اس کے عجائب کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ میرا خدا کس قدر قادر ہے، وہ جنگ میں زوراور ہے، دشمن کو شکست دیتا ہے، سوار کو اس کے گھوڑے سمیت سمندر میں غرق کرتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم تو یہاں صرف موت کا لقمہ ہے، ہم تو یہاں پر صرف محض مرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے کہہ رہے کاش، یعنی وہ یہ چاہتے کہ ہم بیابان میں مار دیے ہوتے، ہم کاش مصر میں مار دیے ہوتے۔ اور یہ الفاظ آگے چل کر ان کے لیے برکت کا باعث نہیں بنے۔ اگر آپ اسی کے 14ویں باب میں آگے پڑھیں اس کی 30 آیت سے، بلکہ 31 سے۔ اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا اس کی حقیقت پہچانیں گے۔ کہتا ہے ہم اس ملک میں جا رہے ہیں، ان کی نظر میں تو ہم ٹڈے ہیں، وہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے لوگوں کو کھا جاتا ہے، ہمیں وہاں خدا تو بھیج رہا ہے، ہمارے بچے لوٹ کا مال ہوں گے۔ اور خدا کے کلام کیا کہتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے 36 آیت میں، اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا ہاتھ دریافت کرنے کو بھیجا تھا، جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی، سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے اسی مر جانا ہے، مر گئے۔ آج بہت دفعہ ہم خدا کے منصوبوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، ایسا بیج بو دیتے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہمیں خدا کے منصوبوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت، اس پلان کے تحت خدا نے ان کو ملک مصر سے نکالا تھا، اس لیے نہیں کہ رستہ میں ڈھیر ہو جائیں،
या खुदा उनको वहां पहुंचा नहीं सकता है। खुदा ने एक बार मूसा को कहा भी कि तू, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, पीछे हट जा। उस तरह खुदावन ऐसा करना तुझसे बैद हो। खुदावन तू रहीम खुदा है, तू क्या करने में धीमा है, शफकत में गनी है, मेहरबानी कर, मुझे बड़ी कौम ना बना, इस कौम को वहां पहुंचा दे। अगर हमारे दुश्मनों ने सुना, मिस्री कौम ने सुना कि इनका खुदा इनको वहां पहुंचा नहीं सका, वो समझेंगे इनका खुदा कमजोर है। हमारा खुदा कमजोर तो नहीं है, उसने उनको पहुंचाया। लेकिन बाद दफा जब हम अपने खुदा के बारे में हम गलत रवैया रखते हैं, सोचते हैं, बीच ऐसा बोलते हैं, बोलते ऐसे हैं, साढ़े खुदा ने सान कुछ नहीं देता, हमारा खुदा कुछ नहीं कर सकता। दानियल के वक्त में दारा बादशाह के अल्फाज ये हैं, ऐ दानियल, खुदा ताला के बंदे, तेरा खुदा कादर हुआ कि तुझे शेरों के मुंह से बचाए। तो खुदा कादर था, खुदा ने कुदरत दिखाई। खुदा ने कहा, ऐ बादशाह बता जी तरह, मेरे खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा, उन्होंने आकर शेरों के मुंह क्या कर दिए, बंद कर दिए, उन्होंने मुझे कुछ जरूरत नहीं पहुंचाया। खुदा अपने कलाम को इस तरह से हमारी जिंदगियों में पूरा करता है। इन 10 लोगों ने जो बोला वही उनके साथ हुआ, और आखिरकार वो जमीन पर ही वहां पर वबा से मर गए और ढेर हो गए। अगर हम मनफी गुफ्तगू बोलेंगे, मनफी अल्फाज बोलेंगे, यही फसल हम काटेंगे। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, उम्मीद की बात करेंगे, हमारी जिंदगी में वो बीज बढ़ेगा और हम ऐसी फसल काटेंगे जिसके सबब से हम शादमान होंगे। इंसान की 6 बाब की दूसरी आयत में कहता है, तू अपने ही मुंह की बातों में फंसेगा। बहुत दफा हम ऐसे फंस जाते हैं अपने अल्फाज में, और यकूब कहता है कि बातों की जो कसरत है वो कतार से खाली नहीं। हम बहुत दफा खुदा के सामने इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, दुआ में बोलते हैं। बहुत से लोगों से तो आप ये सुनेंगे, वो कहते हैं कि हमारे तो खुदा के साथ झगड़ा है, मेरे खुदा ने नाराजगी है, मैं कुछ महीने वहां से खुदा ने नाराज हाँ, मैं चर्च भी नहीं जा रहा, मैं दुआ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी खुदा के साथ नाराजगी चल रही है। बेटा खुदा सारा बाप है ना, बच्चे नाराज भी हो जाते हैं, खुद से ही बना लेते हैं बाप, और यूं वो खुदा के साथ अपने रिश्ते को कमजोर करते हैं। मौत और जिंदगी जो है वो हमारे जुबान के काबू में है। वो लोग जो इन 12 के साथ गए थे, 2 और लोग भी हैं, उनके बारे में पढ़िएगा इसी गिनती 14 बाब में, उसकी 7वीं आयत में। जी, 2 और लोग भी ये थे। अच्छा, 6ठी आयत से वाज़ेह है, लिखा, और नून का बेटा यशवा और यफना का बेटा कालेब, जो उस मुल्क का हाथ दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़ कर बनी इस्राएल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाथ दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। हालांकि दूसरे कह रहे थे वो मुल्क अच्छा नहीं है, उस मुल्क की बुरी खबर दे रहे थे। ये 2 शख्स हैं जो बाईमान हैं, ईमान से भरे हैं, उम्मीद इनके अंदर है, ताजगी है, खुदा पर भरोसा है, और वो खुदा के बड़े कामों को जानते हैं। कहता वो मुल्क नहायत अच्छा है, अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको दिएगा। जो वादा उसने किया है, जो वादा किया है उसे पूरा करेगा। और इनके अल्फाज ने इनको उस वादा के मुल्क में पहुंचा दिया। 6,03,550 20 साल से ऊपर के लोग सब के सब ही बागी होकर बगावत करते हैं खुदा के खिलाफ, और मूसा के खिलाफ, हारून के खिलाफ बुड़बुड़ाने के सबब से बियाबान के अंदर ढेर हुए। उनमें से सिर्फ 2 लोग थे उस पुष्ट में से जो अगली पुष्ट के साथ मुल्क कनान में वादा के मुल्क के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि इन्होंने वो बातें जो खुदा की तरफ से हैं उनको कबूल किया और उन पर आमीन भी कही, और वो कामयाब हुए। ये कहते हैं कि हम आओ हम उस पर कब्जा कर लेंगे, हम उसका तसर्रुफ कर लेंगे। ये कामयाब हुए क्योंकि इन्होंने फतह को अपनी जिंदगी में लिया, खुदा की फतह को देखा, खुदा के बड़े अजायब को देखा, जो चट्टान में से पानी पिला रहा है, जो आसमान से मन बरसाता है,
उसने बटेर भी खाने के उनको दिए। खुदा बियाबान में इनके ऊपर शेल्टर किए रहा, दिन को बादल के सतून में, रात को आग के सतून में अपनी हजूरी उनको देता रहा। उसकी हजूरी में भी ये गुनाह करते रहे। नान के कपड़े फटे, नान के जूते पुराने हुए, क्योंकि खुदा इनके साथ था। हमें अपनी जिंदगी में इस तरह से बीज बोना है ताकि हम कामयाबी के साथ आगे बढ़ें। हमें अपने हौसलों को बुलंद करना है, हमें फतहमंदी के बीज को बोना है। अगर हम बेदिल होंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, लेकिन पौलुस रसूल कहता है अगर तुम बेदिल नहीं होगे ऐन वक्त पर काटोगे। हमें दिलेर होकर उस वक्त में जब कमजोर हो, नातवा हो, जब इब्लीस आप पर हमले कर रहा हो, आपने अपने अल्फाज से फतह के अल्फाज बोलकर इस जंग को, जो अल्फाज की जंग है, आपने जीतना है। रेसलिंग के अंदर दो लोग आते हैं, एक बंदा दूसरे को पहले ललकारता है कि आ भाई मैं तेरा कुश्ती करनी, मैं आज तेरे बोलो तेरा बेल्ट मिला लेना है, ऐ भी कर देना, वो भी कर देना है। और फिर दूसरा आता है, उसकी बात का जवाब देता है और वो कोशिश करता है कि आखिरी बात जो मैं कहूं वो बात हो जो ऑथेंटिक होगी, और यही इससे कामयाबी शुरू होती है। बड़ी जंग जीतने से पहले अल्फाज की जंग जीतना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पर जाती जूलियत को देखें, पहला सैमुएल उसका 17वां बाब, यहां पर बात दफा हम जब इब्लीस के साथ जंग कर रहे होते हैं, हम खामोश होते हैं। यहाँ चर्च में बात दफा हम आते हैं खामोश, चुप, काश दुआ करने बस चुप। तो आप खामोशी के साथ कभी इब्लीस के साथ जंग नहीं जीत सकते। किसके साथ लड़ाई हो जाए ना, दूसरा कहता है यार तेनू बोलियां लगा कह रहे सी, तेनू को गल नहीं आ रही सी, कहना मेरे दिल से आत रही सी, ये तो मेरे कहने में ऐ खमा, मैं दिल से कह रहा सा, मैं दिल से उन्हें बुरा भला कह रहा सा, लेकिन दिल दे विच क्या होया, कामयाबी नहीं हुई। इब्लीस को आप खामोशी के साथ शिकस्त नहीं दे सकते। अल्फाज बोले, वो यीशु के पास आया, उसने कहा फरमा पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उसका आंसर दिया। ऐसा इस तीसरा वाले को पहले पढ़, मत्ती के इंजील के 4 बाब, मत्ती के इंजील के 4 बाब में इसको पहले पढ़ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। यीशु के पास आकर वो तीनों बार पहले बात करता है। इब्लीस की बात है कि वो गाल पहला करेगा, आंसर ईमानदार ने देना है, और फिर आखिरी बात 10वीं आयत से है। यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आगे लिखा है तब इब्लीस उसके पास से चला गया। इब्लीस उधो जाएगा जब आप अल्फाज का सही चुनाव करके उसे डांटेंगे। और आखिरी अल्फाज हमेशा दुश्मन को शिकस्त देने के लिए आप ही होने चाहिए, ना कि दुश्मन के। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आखिरी अल्फाज दुश्मन के हों। आखिरी अल्फाज आपके होंगे, आप कामयाब होंगे, फातेह होंगे। यीशु ने यहाँ पर आखिरी अल्फाज खुद बोले हैं, और ऐसे अल्फाज हैं कि वो उसके पास से चला गया। तो यहाँ पर सैमुएल की किताब में जो हम पढ़ रहे हैं 17वें बाब में, यहाँ पर जाती जूलियत कहता है कि तू तो मेरे पास से खाली हाथ आ रहा है। यहां से पढ़ेंगे 42वीं आयत से। और जब उस फलिस्ती ने इधर उधर निगाह की जी, और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, महज लड़का था और सुर्ख लो, हाँ जी, और नाजुक चेहरा का था जी। सो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं खुदा हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। और यहाँ पर उसने दाऊद पर लांत भी की देवताओं का नाम लेकर। लेकिन आखिरी अल्फाज जो हैं वो दाऊद के हैं 45वीं आयत से। और दाऊद ने उस फलिस्ती से कहा तू तलवार और भाला और बर्छी लिए मेरे पास आता है, पर मैं रबल फाश के नाम से इस्राएल के जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी
तूने फजीलत की है तेरे पास आता हूँ। और आखिरी अल्फाज बोलकर खुदा का कलाम कहता वो जल्दी से भागा और उसने अपने थैले में से वो जो 5 चिकने पत्थर थे उनमें से एक लिया, फलाकर में डाला और घुमाकर जब मारा तो वही फिलिस्तीन उसकी आंखों के सामने ढेर हो गया। उसी की तलवार से उसने उसकी गर्दन उतार दी, क्योंकि इल्फाज की जंग जो है वो 2 जीत चुका था। और फिर आखिरी जंग जो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा की तौफीक से था, खुदा की ताकत से था, खुदा की मर्जी से था, बनी इस्राएल को भी सिर्फ फतह दिलाई। हम अपनी जिंदगी में सही अल्फाज का, फतहमंद अल्फाज का इस्तेमाल करके खूब कामयाब हो सकते हैं। यीशु के नक्शे कदम पर चलकर, जैसे यीशु ने आखिरी अल्फाज अदा करके अबलीस को डांटा, और कलाम कहता है कि अबलीस जो है, शैतान जो है, उसके पास से चला गया। मैदान की जंग जीतने के लिए हमें इस राज को जानना होगा कि अबलीस को पहले शिकस्त देने के लिए हमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे। अगर हम रूसी किताब में वापस जाए तो वहाँ पर लिखा है जिस रात खुदा ने बनी इस्राएल कौम को निकाला, तो कलाम में लिखा है कि बहरे कुज़ुम को देखकर वो परेशान थी, लेकिन खुदा ने मूसा खड़ा किया कि तू अपने हाथ को बढ़ा दे। ये सिर्फ फरियाद ही नहीं करनी है, दुआ ही नहीं करनी है यहाँ पे, अब तो अपने हाथ को बढ़ा दे ताकि बहरे कुज़ुम जो है वो तेरे हाथ बढ़ाने के वक्त से 2 हिस्से हो जाए। और ऐसे ही खुदा ईमानदार की जिंदगी में ऐसी फतह, ऐसी कामयाबी लाना चाहता है ताकि वो ऐसे अल्फाज फतह के बोले, ऐसे कामयाबी के अल्फाज बोले, इस तरह से वो खुदा के कलाम को बोले। जब हम खुदा के कलाम को बोलते हैं तो कलाम जो है वो असर दिखाता है, खुदा का कलाम जो है वो मौसर साबित होता है। हम बहुत दफा इस बात को देखते हैं, खुदा ने हमें इस बात के लिए चुना है, हम उसके कलाम को बोलकर अपनी जिंदगी में फतह ला सकते हैं। जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर गया, बर्रा नहीं था। इसाक पूछता, बाप लकड़ियां भी हैं, आग भी है, बर्रा नहीं। उसके अल्फाज फर्क हैं और वो कामयाबी के हैं। उसने खुदा अपने वास्ते आप ही बर्रा मुहैया करेगा। क्या हम अपने माली हालात के बारे में, मुश्किलात के वक्त में शिफा के लिए 12 वर्ष की औरत ने कहा मैं उसका पल्लू ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊं। शिफा के लिए देखें उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। हम अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जिससे हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और आखिरी बात यूट्यूब के खात में लिखा है कि हम इस जुबान का सही इस्तेमाल करें। फिर से देख लीजिएगा यूट्यूब के खात में उसके 30 बाब की 10वीं आयत से, एक ही मुंह से मुबारकबाद और बददुआ निकलती है। हाँ जी। ऐ मेरे भाइयों ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? अगर नहीं निकलता है एक ही चश्मा के एक मुंह से खारी पानी भी निकले सवेरे तो शामी मीठा आवे, फिर इंतजार कर दे भी फिल्टर वाला शामी आए, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि संडे वाले दिन तो ईमानदार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ते सोमवार वाले दिन जनाब किसी को चक्कर में संडे को तो कहे कि फातिह हूं, फतह मेरी है, लेकिन फिर जब सोमवार आए फिर मायूसी की बातें करे, नाउमीदी की बातें करे, मौत की बातें करे, मालिक क्राइसिस की बातें करे, बीमारी की बातें करे, नाउमीद हो। खुदावंद नहीं चाहता, आप पूर्ण उम्मीद रहे। यीशु कब्र में नहीं है, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और उसने कहता है कि अगर वो मुर्दों में से जी उठा है तो आओ हम नई जिंदगी में चलें, हम नए तौर पर चलें। कलाम कहता है अगर कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। अगर हम नए मखलूक हैं, हमारी गुफ्तगू भी नहीं होनी चाहिए, हमारे अल्फाजों का चुनाव भी फतहमंदी वाला होना चाहिए, कामयाबी वाला होना चाहिए। अबलीस को देखकर घबराए नहीं। कलाम कहता है यकूब के खात में बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो, तुमसे भाग जाएगा। खुदा इस काम के बस